Continuation of the legal environment. Yesterday we were discussing about the different factors that will have an influence on the retail sector. That is, we were discussing about the different type of retailing environment, right? Yesterday we were discussing about the retailing environment. Now in this retailing environment, we have already discussed about the economic environment. Economic environment कल हमने अच्छे से discuss किया है. Now apart from economic environment, today will be as I have given a brief introduction. कल brief introduction मैंने legal के बारे में दिया था, तो मैं उसके बारे में ही कंटिन्यू कर रही हूँ. लीगल इन्वायरमेंट में, जैसे लीगल इन्वायरमेंट में देर आर डिफरेंट लीगल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट. सो फॉर मीन्स फॉर एनी कंपनी हु विश टू कम टू इंडिया, मीन्स कोई कंपनी अगर इंडिया में आना चाहती है तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ legal restrictions that can be imposed on, like the FDI, foreign direct investments hai, then certain regulation related to property, that is property regulations, and there are complex taxation system. So these are few things that means any company, an MNC, need to take care while coming to India, right? So first I will be discussing about the FDI, that is foreign direct investment restrictions. What sort of restrictions are there in India for any foreign entrance? If means in retail sector specifically, FDI in retailing had been permitted in India for a short period prior to 1997, and approvals were granted to few MNCs like NANS to set up retail chains. 1997 की बात है. NANS को सिर्फ वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रिटेल चेन्स की अप्रूवल दी गई थी. The government later retracted its decision and banned further FDI in the retailing sector. बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए नैन्स एक कंपनी जिसको 1997 में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम FDI की अप्रूवल दी गई थी इन इंडिया to start up their retail chain. But then government later retracted its decision and banned further FDI. गवर्नमेंट ने फिर बैन कर दिया FDI को रिटेल सेक्टर में. It felt that huge FDI in this sector would be a threat to existing किराना stores. ये लगने लगा गवर्नमेंट को कि अगर ज़्यादा हम FDI लाते हैं इस सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं लाइक किराना स्टोर्स एंड ऑल, उनको इसका नुकसान होगा. In that short period when FDI was permitted in the retail sector, many MNCs had entered India through joint venture or franchisee agreement. ये जो शॉर्ट पीरियड का जो टाइम था, जिसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दिस FDI was allowed during that period itself, उस छोटे से टाइम में many MNCs entered through joint venture, मैं इसको JV लिख रही हूँ, joint ventures and franchisee mode. They already entered in India, fine, through different franchisee agreement. The ban on FDI and lack of industry status for retailing made it difficult for foreign players to fund big retail ventures in India. अब इंडिया में ऑलरेडी बैन हो गया है, FDI बैन हो गया था उस वक्त में, और रिटेलिंग जो स्टेटस था इंडिया में एज सच इतना ऑर्गेनाइज तो था नहीं. तो फॉरेन प्लेयर्स दे वर वेरी confused, and they also felt it difficult to invest huge amount in India. इंडिया में कैसे लगाए वो, ठीक है. However, the government of India permitted foreign players to forge franchising and technical alliances with Indian retailers. बट उस टाइम में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने अलायंस के लिए अलाउ किया था. अलायंस किस तरीके का होगा, देखो, आप एक फॉरेनर हो, फॉरेनर डायरेक्टली इंडिया में आकर अपना एक सेटअप नहीं कर सकता, अपना रिटेल सेक्टर में वो अपना सेटअप नहीं कर सकता. बट व्हाट द फॉरेनर कैन डू, ही कैन अप्रोच एन इंडियन. ये एक इंडियन रिटेलर है या एक इंडियन कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या इंडियन रिटेलर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, उसके संग एक अलायंस कर लिया. नाउ दे कैन सेट अप द बिजनेस इन इंडिया टुगेदर. जो तो इसका मतलब डायरेक्ट फॉरेनर्स के लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, बट दे कैन कम अप along with the technical alliances with any इंडियन का होना ज़रूरी है. इंडियन वहाँ पे रहेंगे, इंडियन रिटेलर्स हो या इंडियन मैन्युफैक्चरर कोई भी हो, उनके संग एक टेक्निकल अलायंस होके ही काम होगा, इस तरीके का. Marks and Spencers used this opportunity to enter India through the
लाइसेंसी रूट। ये मार्क्स एंड स्पेंसर्स तो बहुत ही मतलब फेमस है, हम लोग स्पेंसर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो मार्क्स एंड स्पेंसर्स जो है उन लोगों ने भी इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया एंड एंटर इंडिया थ्रू दिस लाइसेंसी रूट। लाइसेंसी के द्वारा वो इंडिया में घुसे, लाइसेंसी रूट के हिसाब से, ठीक है। तो नाउ द बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट The BJP-led central government of the country allowed foreign retailers to open multi-brand retail outlets with 51% ownership in 2015. अब बीजेपी जब आई तो in 2015 they allowed 51% FDI in retail outlets, ठीक है, 51% stake allow कर दिया. The objective of the government allowing FDI in the Indian retail scenario where to. अब ये जो इंडियन रिटेल में जो इतनी ज़्यादा FDI अलाउ की गई थी, उसका मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? डेफिनेटली इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज हमारे इंडिया में आएंगे, टू ब्रिंग इन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज and to bring about an organization of the sector, because in India the retail sector was not organized. So in order to organize the retail sector, the government allowed FDI in India, ठीक है, in Indian retail, provide employment to thousands of Indians, provide a wider choices of products at reduced prices to the consumer, improve the shopping experience and so on. Fine. Apart from the above benefit, the entry of large, well-established foreign retail players with considerable experience is expected to lead to an increase in consumer awareness and provide efficient and value-added service to customers. Okay? Now, the next point is, apart from FDI regulations, the next point is property regulation. In India, if any MNC would like to come in, they need to understand the foreign direct investment restrictions and then the property regulation. It's a few restrictions they need to understand. Dearth of good quality retail space in prime location, skyrocketing rentals and high lease amounts acts as a hurdle in the growth of retail industry in India. Some of the problems faced by organized retailers include high prices of retail space, hefty stamp duties for property transfer, rigid zonal laws, urban land sealing acts, etc. इंडिया में जो प्रॉपर्टी रेगुलेशंस हैं इसमें इसके बारे में बता रहे हैं कि एक तो आपको अच्छी क्वालिटी स्पेस प्राइम लोकेशंस में मिलेंगी नहीं, उसके बाद जो रेंटल्स है वो बहुत हाई हैं, बहुत हाई अमाउंट ऑफ लीज आप बोल दो, रेंट बहुत हाई हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रेंट के अलावा भी अगर आप बात करो, जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है, स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये एक डिफिकल्टी ला रहा है आपके रिटेल को सेटअप करने में. ये तो हमें पता है कि हमारे इंडिया में जो प्रॉपर्टी रेगुलेशंस है वो काफ़ी टफ है. एक तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वगैरह में काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस हमें लगते हैं, फिर हर जोन के अपने अपने लॉज हैं. वी आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग. नाउ देन द नेक्स्ट इज द रियल एस्टेट. नेक्स्ट पॉइंट इज द रियल एस्टेट. The government is the single largest owner of land in India. Hence, it is very difficult for organized retailer to find suitable sites for establishing retail outlets in metros and other large cities. सबसे ज़्यादा अभी भी ज़मीन गवर्नमेंट के पास है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज रिटेलर्स को अच्छी जगह खोजना, स्पेशली मेट्रोज में. The mismatch between the demand and supply of real estate in large cities had led to an astronomical growth in the prices of real estate. इसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि ये मिसमैच हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई का. रिटेल के लिए जो मेट्रोज में प्राइम लोकेशन में जो जगह चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसके कारण प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जा रही है ड्यू टू मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. This made it impossible for organized retailers to enter big cities without the backing of large real estate companies. तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है ना ऑर्गेनाइज रिटेलर्स को. ऑर्गेनाइज रिटेलर्स बड़े बड़े शहर में घुसेगी कैसे, जब तक लार्ज रियल एस्टेट कंपनीज उनके पीछे एक बैकअप के रूप में ना रहे. आप अगर ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में एंटर करना चाहते हो तो ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में कैसे एंटर करोगे, जब तक आपके बैकअप में बैकएंड में एक प्रॉपर बड़ी एक रियल एस्टेट कंपनी ना रहे.
K. Raheja's associations with Shopper Stop is a typical example of the involvement or interest of real estate players in organized retailing. आप देखो जैसा हमने यहीं देखा मार्क्स एंड स्पेंसर्स, तो स्पेंसर्स में के रहेजास एंड स्पेंसर्स, इनके बीच में जो एक क्या बोलते हैं, सॉरी के रहेजा एंड शॉपर स्टॉप का है, शॉपर स्टॉप। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे ब्रांड हैं। शॉपर स्टॉप हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन शॉपर स्टॉप को के रहेजा का हेल्प लेना पड़ा फॉर दिस रियल एस्टेट। तो ये समझ में आ रहा है कि रिटेलिंग में, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में एक अच्छा रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट का इन्वॉल्वमेंट, रियल एस्टेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The high real estate prices in North India has led to most of the new players selecting South Indian cities like Hyderabad, Bangalore and Chennai to start their retail operations. अभी ये भी देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में प्राइसेस बहुत हाई हैं, इस वजह से साउथ इंडियन सिटीज में जैसे हैदराबाद, बैंगलोर एंड चेन्नई, वहां पे रिटेल ऑपरेशंस ज़्यादा स्टार्ट किया जा रहा है। Variation in sales tax rate across different Indian states is another problem faced by organized retailers. Apart from this, multiple point octroi and other taxes levied by states made it difficult for retailers to source merchandising from different parts of the country. This situation is expected to ease with the introduction of GST in 2017. देखो पहले क्या था, GST आने के पहले अभी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में जो आया है, GST आने के पहले हर स्टेट, हर एक जगह पर, मतलब हर एक स्टेजेस में, जो हमारा एंटायर सप्लाई चेन है ना, हर एक स्टेजेस में अपने हिसाब से टैक्स लगाया जाता था। हर एक जगह पर एक एक टैक्स लग रहा है, हर एक वैल्यू चेन में आपका एक एक टैक्स लग रहा था। तो उसके कारण क्या हो रहा था, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। मतलब जैसे मैं अगर एक बिजनेस करना चाहूँ हैदराबाद में या मैं देहरादून में करना चाहूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि कहीं से भी सोर्स करके कहीं पर भी बेचूंगी, मतलब थ्रू आउट नेशनल लेवल पे डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि इंडिया में हर एक स्टेट में, स्टेट के अपने अपने एक नियम थे, अपने अपने टैक्स सिस्टम थे। तो और ऑक्ट्राई पॉइंट अलग अलग था, और टैक्सेस सब जगह पर लेवाइड होते थे, अपने अपने स्टेट अपने हिसाब से एक एक पॉइंट पे टैक्स लगा रहे थे। तो जब जीएसटी आया, इंट्रोडक्शन हुआ, तो उससे थोड़ा सा इजी हुआ ये सारी चीज। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज द लेबर लॉज। अब नो डाउट आप कोई भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ के लेबर लॉज को समझना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के लेबर लॉ को आपको समझना पड़ेगा। अनफ्रेंडली लेबर लॉज अनदर इशू ऑफ कंसर्न फॉर द रिटेलर्स। इंडिया का लेबर लॉज, अब फ्यूचर ग्रुप की हालत देख लो, लेबर लॉज की वजह से ही इतनी प्रॉब्लम हुई, ट्रेड यूनियंस एंड लेबर लॉ। So unfriendly labor laws are another issue of concern for the retailers. Retailers requires additional workforce to meet the increase in customer inflow in the festival season, but Indian labor law do not allow the retailer to hire people as temporary workers for a few days. Indian labor law में ये temporary workers वाला system नहीं है, तो ये थोड़ा unfriendly है। Then the next point is टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हमने रिटेलिंग इन्वायरमेंट में एफडीआई वगैरह जो जो पढ़ा, रिटेलिंग इन्वायरमेंट में सबसे पहले हमने जो एफडीआई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह पढ़ा, ये सब लीगल इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट था रिटेलिंग इन्वायरमेंट में। अब हम लोग आ जा रहे हैं टेक्निकल इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। चाय भी ठंडी हो गई, चलो। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ चेंज इन रिटेल इंडस्ट्री। ये तो बताने की बात ही नहीं है कि विदाउट टेक्नोलॉजी आज जो इतने अच्छे से रिटेल इतने अच्छे से चल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इज वन सच रीजन। आप जाओ कितना स्मूथली सारी चीज़ें हो जाती है, सामान अपने आप मिल जाता है, आप आराम से बिलिंग करवा रहे हो, तो बहुत स्मूथ हो गया ऑपरेशंस। तो दिस इज वन सच रीजन इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। The computerization of various retail operations like inventory management, billing, database management, and the widespread use of barcode scanners, computer point of sales terminals, management information system have brought a sea change in the way retailing is conducted in India. एक vast change, sea change बोल रहे हैं, पूरी तरह से change हो गया टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है रिटेल एनवायरमेंट में, ये काफी ज्यादा है। Retailers are also using technology to improve the shopping environment and to provide a pleasant shopping experience to the customer. Quick response computer links with suppliers are increasingly being used to reduce lead time
एंड ओवर स्टॉक आउट प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा इजी जो सिस्टम जो टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है दैट इज़ ERP इम्प्लीमेंटेशन, जिससे सप्लायर इंटीग्रेशन हुआ है। तो सप्लायर इंटीग्रेशन होने के कारण सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कस्टमर मैनेजमेंट, दोनों चीज़ें, कस्टमर हुआ, बिलिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई है ड्यू टू दिस एनहांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अब हम लोग आ जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अब कंपटीशन को समझना, जिस भी जगह पर आप जाओगे वहाँ के कंपटीशन को समझना is one such very important thing that we must consider. Though the retailing industry is in the nascent stage in India, there is severe competition among the existing players. Moreover, the huge untapped potential is encouraging many players to venture into retailing. इंडिया में जो रिटेल सेगमेंट है वो बहुत अनटैप्ड है, मतलब प्रॉपरली टैप नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स रिटेल में वेंचर करना चाह रहे हैं। The growth of retail stores was in the categories of the specialty stores, the category killers and the one-stop super stores. यहाँ पर एक टेबल दिया है, जैसे आपको दिया है लीडिंग रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। ये 2017 की रिपोर्ट है हमारे पास, जैसे फ्यूचर रिटेल, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9841.88 करोड़, ऑपरेट्स हाइपर मार्केट्स एंड सुपर मार्केट्स। फ्यूचर रिटेल के बारे में पता ही है, कुछ साल तक फ्यूचर बहुत अच्छा चल रहा था, फ्यूचर ग्रुप, ट्रेंड, देन शॉपर स्टॉप, केवल किरण, आदित्य बिरला रिटेल, वी मार्ट रिटेल, प्रोजोन इंटू, कैंटेबल रिटेल, प्रोवोक हमने सुना है, ब्रांड हाउस। ये सारे हमारे यहाँ नहीं है वेस्ट बंगाल में, लेकिन जो जो हैं जैसे फ्यूचर, शॉपर स्टॉप, ये तो नॉर्मल है, हम लोग जानते हैं इनके बारे में। सबसे ज़्यादा जो इसमें है आदित्य बिरला रिटेल का, उसमें तुम्हारा 11,830 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट है, ऑपरेट्स मोर देन 500 सुपर मार्केट्स एंड ओवर 20 हाइपर मार्केट्स इन मोर देन 10 सिटीज इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा ये है। विशाल मार्ट भी है। चलो, apart from the existing competition in the organized retail sector, organized retailers are also being affected by stiff competition posed by the traditional stores in the unorganized sector. देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कुछ कंपनीज ही हैं, कुछ कंपनीज के नाम ही हमने 10-20 ऐसे पढ़ा, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है। छोटे छोटे दुकानदार भी तो है ना, उन लोग से भी तो कंपटीशन है। The competition among the retailers varies depending on the way the retail operations are carried out and which entity of the distribution channel carry out these operations. Not to be overlooked, riding on the back of internet penetration and use of internet-enabled devices, e-commerce has grown rapidly and significantly in India. Though analysts may argue that e-commerce has just taken its baby steps in India, it clocked $23 billion in 2015. ई-कॉमर्स को अगर हम बोलें कि ऑनलाइन सिर्फ छोटा सा एक बच्चा है अभी तक, तो वो गलत होगा, क्योंकि 2015 से, मतलब आज से 6 साल पहले की बात देखो, $23 बिलियन उस टाइम में मार्केट शेयर था, but it touched only a paltry figure of $14.5 billion. Many reasons like demonetization, reduced profit margins were quoted. Nevertheless, Morgan & Stanley has estimated Indian e-commerce industry to reach $119 billion in 2020, और it already reached. इंडिया में ये फिगर क्रॉस कर चुका है. This has forecast a battle between e-tailers, pure retailers like Amazon to be precise, and the organized retailer than between the organized and unorganized. अब जो है ना, अब कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के बीच में नहीं है. अब कंपटीशन जो हो गया वो हो गया आपके इसमें ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेलर्स हैं, और ई टेलर्स, मतलब जो ई टेलर्स मतलब ऑनलाइन जो सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन टेलर्स, उनके बीच में. तो इस तरीके का अब कंपटीशन हो गया. पहले जैसे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कंपटीशन थी, अब वो कंपटीशन का लेवल चेंज हो गया. ठीक है, अब देखो Indian retail industry and overview. Now we'll be discussing about Indian retail industry. Indian retailing industry is considered one of the most attractive industries in the world,
accounting for 10% of India's GDP and 8% of total employment. This is for Q1 2017 data I'm reading about. मतलब क्या बता रहे हैं, इंडियन रिटेल इंडस्ट्री तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है ही. यहाँ पे बताया रिटेल जो है वो 10% ऑफ इंडिया जीडीपी. इंडिया का जो रिटेल सेगमेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ इंडिया जीडीपी. ठीक है, इंडिया की जीडीपी का 10%. फाइन. एंड उसके बाद 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट. 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट. ये काफ़ी बड़ा फिगर है, छोटा फिगर नहीं है. मतलब रिटेल सेक्टर ही 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो भी 2017 की बात है. आज और भी ज़्यादा हो गया. इंडियन रिटेलर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स. हमें पता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स सेगमेंट है. तो अभी ई टेलर्स भी इसमें जुड़ गया है. ई टेलर्स. Now, the relative uniformity and standardization of retailing is the key attributes of modern retail. आज की डेट में आप देखो यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन. पहले जैसे कोई भी आए हम बार्गेन करते थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए जाते थे जो ट्रेडिशनल स्टोर्स में होता था. बट अभी नहीं है, ये एकदम यूनिफॉर्म या स्टैंडर्डाइज एक प्रैक्टिस हो गई है. The size of each unit can be small so that a chain of convenience stores is modern store. A modern retail. A single large department store is also modern retail. Single large department store, इसको भी हम modern retail में categorize करेंगे. आज देखो दुकानें भी जो होती है ना modern retail में बड़ी बड़ी होती है एकदम. The unorganized retailers include traditional mom and pop or kirana stores which do not possess license to retail. With majority of the businesses coming from unorganized retail sector, Indian retail sector offers scope for tremendous opportunity of growth and consolidation to the organized players in the market. The BCG report also points out that the overall growth rate of the India's retail industry is expected to be 12% per annum, of which modern retail trade will account for 20% per annum and traditional retail at 10% per annum. Fine. The report expects India to become the largest e-commerce market in the world, driven by robust investment in this sector. ये ऑलमोस्ट समझ में आ रहा है कि इंडिया का जो मार्केट है, बीसीजी रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि ओवरऑल हमारे इंडिया में जो रिटेल इंडस्ट्री है वो 12% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ कर रही है. और ट्रेडिशनल रिटेल भी ग्रो कर रही है 10% पर एनम. तो ओवरऑल आप देख लो एक ग्रोथ ओवर है 22% से ज़्यादा का ग्रोथ नॉर्मल इसमें. इसके बाद आपका जो ई टेलिंग मतलब जो ऑनलाइन जो डिजिटल सेलिंग है वो भी एक अलग डिजिटल एनवायरनमेंट का एक अलग सेलिंग है. ई टेलर ई कॉमर्स वाला कॉन्सेप्ट तो अलग ही है. तो इसके कारण इंडिया एक बहुत प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी देता है रिटेलर्स को इन्वेस्ट करने के लिए. इंडियन रिटेल लैंडस्केप, जैसे यहाँ पर देखो कुछ कंपनीज के नाम भी दिए हैं. मेजर इंडियन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स इन द रिटेल इंडस्ट्री आर फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार, रिलायंस रिटेल, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस फुटप्रिंट्स, रिलायंस फ्रेश, आदित्य बिरला ग्रुप, मोर है. अच्छा मोर जो है वो आदित्य बिरला का है. इन्फिनिटी रिटेल, क्रोमा एंड आरपी संजीव गोयनका ग्रुप जिसको स्पेंसर्स के नाम से हम जानते हैं. ठीक है. इंडियन रिटेल लैंडस्केप. अब इंडियन रिटेल में क्या क्या है. इंडियन रिटेल में आप देखो एक हो गया सुपर मार्केट. दे आर लार्ज सेल्फ सर्विस आउटलेट जनरली लोकेटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज कैटरिंग टू फूड एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट. सुपर मार्केट तो वो आप जैसे रिलायंस फ्रेश ले लो, मोर ले लो, रत्नादीप, ऐसे कुछ कंपनीज हैं. दे आर सुपर मार्केट. ये सेल्फ सर्विस है. आप सुपर मार्केट में जाओगे खुद से सामान लेते हो तो मेनली ये सब फूड एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का है. हाइपर मार्केट typically occupying 50,000 to 1 lakh square feet. It provides a basket of goods ranging from grocery to clothing and appliances like Big Bazaar and Reliance Mart. सुपर मार्केट में मेनली आपको खाने पीने के सामान हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स दिखने को मिलेगा और हाइपर मार्केट में सब तरह का मतलब रेंज फ्रॉम खाना पीना टू एवरीथिंग. देन कम्स द स्पेशलिटी स्टोर्स. स्पेशलिटी मतलब सिर्फ उस प्रोडक्ट को लेकर ही डील करते हैं. Such stores focus on specific product categories pertaining to specific social class who have high product loyalty. जैसे टाइटन का कुछ लोग टाइटन के ब्रांड का ही सामान खरीदेंगे तो वो टाइटन स्टोर में ही जाएंगे. टाइटन आई, तनिष्क, रिलायंस ट्रेंड्स. तो
ये सब एक ब्रांड लॉयल या प्रोडक्ट लॉयल्टी आ जाती है, वो सारे लोग उस ब्रांड के ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। कैश एंड कैरी, दे आर लार्ज B2B focused retail stores for those requiring bulk buying and selling. Metro is an example of cash and carry store. ये कैश एंड कैरी जो है मेट्रो का जैसे है, लार्ज B2B बिजनेस टू बिजनेस फोकस्ड है रिटेल स्टोर, जहाँ पे लार्ज बाइंग एंड सेलिंग हमको जरूरत होती है। Of late, pharmacy retail market has cropped up as an individual retail segment, mainly owned by private players. Some examples are Apollo Pharmacy, MedPlus Pharmacy, etc. आप देखो फार्मेसी में भी फार्मेसी रिटेल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कुछ सालों से। लास्ट 2016-17 से हमें देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फार्मेसी में भी रिटेल सेगमेंट हो गया। की ड्राइवर्स ऑफ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री, अब क्या क्या की ड्राइवर्स हैं, मतलब किन कारणों से इंडियन जो रिटेल है वो इतना चल पड़ा है, तो की ड्राइवर्स क्या है वो हमको देखने की ज़रूरत है। India has occupied a remarkable position in the global retail industry. Some of the key drivers are growth in nuclear family and working population leading to increase in customer disposable income. सबसे पहले ये जो इतनी ज़्यादा रिटेल सेगमेंट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, क्यों हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इंडिया का पॉपुलेशन। सबसे पहली चीज वो है। सेकंड क्या हो गई? ग्रोथ इन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली अलग अलग फैमिली मीन्स अलग अलग रिक्वायरमेंट, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। Liberalization of the FDI policy by the government in both single as well as multiple brand retail. FDI में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लिबरल हो गई आफ्टर 2015। FDI में गवर्नमेंट बहुत लिबरल हो गई, लिबरल पॉलिसीज, तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, वो आइदर सिंगल या मल्टीपल ब्रांडिंग सभी में। ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज इन इंडिविजुअल वेल्थ, अनटैप्ड रूरल सेक्टर एंड लेस डेवलप्ड टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। कुछ रूरल सेक्टर या अनटैप्ड रूरल सेक्टर्स हैं जो छूटा हुआ है। ग्रोइंग कस्टमर एस्पिरेशंस एंड प्रेफरेंसेस फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट ड्यू टू ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन। मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन रिटेल इंडस्ट्री। अब इंडियन रिटेल इंडस्ट्री का मेजर चैलेंजेस क्या है? दो इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड डायनामिक इन नेचर, इट इज नॉट विदाउट पिटफॉल्स। देखो इमर्जिंग, अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं लाइक लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक तो हो गई लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके कारण इनएफिशिएंसी हो रही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लैक ऑफ अट्रैक्टिव रिटेल स्पेस एंड एक्सपेंसिव रियल एस्टेट प्राइसेस। इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, रिटेल स्पेस बहुत महंगा है। इंडियन रिटेल सिनेरियो, फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बता रहा है ये। एक तो देखो बॉक्स में आप लोग के वो दिया है, आप लोग उसको गो थ्रू करना। करंट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, ये करंट तो नहीं है, ये आपके 2012-13 का रिपोर्ट है, करंट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो। सो आई एम लीविंग दिस सेक्शन आउट, ठीक है। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आप लोग की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।